الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد. بلاس بس مصروف پیم به خدا کو نه خیر دا دی نه دا بل مای خالی برکې بس کم یو مایک برکې دا دین عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهایی محترم یقینا د تاسو په علم کې دا چې نن زموږ مناظره په کومه موضوع باندې ده سورزونه مسلسل چې کوم د میډیا په ذریعه سره په نورو ذریعو سره کومې پراپګنډې شوي وي کومې خبرې شوي وي نن الحمدلله یو بل ته مخامخ ناست د هغوی هم علما راغلي دي موږ هم طالب العلمان مخامخ ناست یو انشاءالله العزیز زموږ نن مجلس چې کوم 3 غنټو باندې مشتمل دی زموږ دغه خبره به په خپلې موضوع باندې د نظیر ټولو نه اول زه خپله دعوه پیش کوم د خطبې دوران کې انصات او استماع لازم او صلات او کلام مکروه دی دغه زما دعوه ده د خطبې دوران کې انصات دربیم کوم انشاءالله او استماع لازم او صلات او کلام مکروه دی دغه زما دعوه شوه انشاءالله العزیز زه به د مولانا ضیاء الرحمن صاحب نه د هغې جوابي دعوه غواړم انشاءالله. دویم نمبر دغې سره لاندې مونږ شرایط لیکلي دي. نمبر 1 غیر مقلدین حضرات چې کوم زمونږ فریق مخالف دی هغوی موقوفات د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه مني څنګه چې هغوی کتابونه لیکلي دي مونږ راوړي دي انشاءالله العزیز په وخت ضرورت به مونږ هغه پیش کړو د دې وجې نه به دلیل کې موقوف روایت قطعا نه پیش کوي نه به موقوف روایت ته لاس وړي. دویم نمبر هر فریق به پابند وي چې دلیل د خپلې دعوې مطابق پیش کړي کومه دعوې چې پیش کړي د هغې مطابق به دلیل پیش کوي انشاءالله. نمبر 3 د موضوع نه خروج به شکست ګڼلی شي کومه موضوع زمونږ روانه ده هم په هغه موضوع کې به دننه چلیږو د هغې نه بهر به نه وځو انشاءالله. څلورم نمبر چون کې زمونږ د موجوده بحث د غیر مقلدینو حضراتو سره دی چې هغه تکفیریان دي یقینا د دې خارجیت پکې بیا منتهی کېږي زمونږ بحث د هغوی سره دی لہذا شوافع وغیره مجتهدین به په هغوی باندې ځان قیاس کول او هغوی په خپل ځان قیاس کول دا به باطل وي. پنځم نمبر د اصطلاحاتو او الفاظو معنا او مفهوم بر خپل ځان نه نشي پیش کولی بلکې د هغې دپاره به د مسلم شخصیاتو نه حواله پیش کول ضروري وي. که مونږ یو څیز دلته معنا کوو د هغې مطلب بیانو نو پکار دا ده چې مونږ د هغې دپاره د یو مسلم شخصیت کتاب راواخلو د هغې نه پیش کړو. دویم نمبر چونکې ما اول دعوه پیش کړله زه به د هغوی نه جواب دعوه غواړم انشاءالله العزیز ځکه په مدعا علیه باندې لازم وي چې هغه د دعوې جواب پیش کړي. زما په دعوه کې 2 اجزا ما ذکر کړي دي زه د دواړو اجزاو جواب به انشاءالله العزیز د دې نه غواړم. زه به خپله باندې د دغه شرایطو انشاءالله العزیز خیال ساتم په دې باندې به چلیږم او فریق مخالف نه به هم انشاءالله العزیز په دغه شرایطو باندې د پوره چلیدو هغه مطالبه کوم انشاءالله العزیز. اول نمبر قرآن راته اول نمبر چون کې زمونږ احناف اصول داري د ټولو نه اول په خپله مسله باندې د قرآن مجید نه دلیل پیش کوو. د دې وجې نه زه به د ټولو نه اول د الله کتاب ته راشم قرآن مجید ته. قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن لوستی شي فاستمعوا له غوږ کېږدوئ هغې ته متوجه شئ هغې ته وانصتوا او خاموش شئ لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. انشاءالله العزیز زه به استدلال مخکې ذکر کوم خو د دې نه مخکې مولوي صاحب استماع او انصات دا 2 الفاظ دي د قرآن مجید دغه آیتونه دي. انصات معنا خاموش کېدل دي د استماع معنا ده متوجه کېدل غوږ ایښودل
د استماع معنا اوریدل نه دی مولوي صاحب د ټولو نه اول به زه په دغې باندې د ټولو نه اول به زه دلیل پیش کړم انشاءالله زه کتابونو ته ځم خو زه په طور د استدلال باندې د ټولو نه اول کتابونه 2-3 پیش کوم د قرآن مجید دا آیات د دې نزول نزلت فی الصلات د بانځه په باره کې نازل شوی د فرض منځ په باره کې خو البته ټول مفسرین او علماء کرامو لیکلي دي چې د دې حکم عام دی خو هم پکې شامل ده چون کې د اصل نزول چې هغه د منځ په باره کې شوی دی البته د دې حکم عام دی د زما سره ابن کثیر دی د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 373 دارالسلام چاپ دی وقال شعبة عن منصور سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة دا د منځ او د جمعې په باره کې نازل دی دغه رنګې دا دویم زما سره طبري دی د دې جلد نمبر 5 صفحه نمبر 617 ده همدلته د مجاهد رحم الله نه روایت عن مجاهد فی قوله واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال الانصات للامام يوم الجمعه د منظم ورنه مراد ده او د جمعې خطبه ورنه مراد ده څنګه چې په منځ کې خاموش کېدل لازم دي واجب دي دغه سي خطبه په دوران کې خاموش کېدل لازم او واجب دي دا دریم نمبر کتاب د زمان سره مسند ابن الجاد جلد نمبر 2 صفحه نمبر 154 دلتم عن مجاهد في قوله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال القرآن والامام يخطب امام د خطبه دوران کې بلکې سلورم نمبر زو په تور د الزام باندې تفسیر لا مثال دی دا ستاسو د غیر مقلدینو حضراتو د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 206 دا دیم لیکي چې د دې آیات حکم عام دی دا منځ او خطبه د جمعې دواړو د صفحه نمبر 206 دی وی شان نزول د دې آیات کې مختلف روایت دي یا دا چې دا حکم په قرات د منځ کې راغلی دی یا په وخت د لوستو د خطبه کې او البته خپل عموم په لحاظ سره دا شامل دی دواړو ته یو منټ اول نمبر د قرآن مجید د دغه نص مطابق د خطبه په دوران کې خاموش کېدل متوجه کېدل امام ته په بل دا لازم دي واجب دي د قرآن مجید دغه آیات د نص قطعي دی او دغه ما د ځان نه تفصیل ونه کو بلکې د هغې لپاره څلور تفاسیر ما پیش کړله مولانا صاحب که هغه طرف نه وایي چې یاره دا د خطبې په باره کې نه دی نازل د خطبې سره د دې تعلق نشته دی حکم عام نه دی صرف یو تفسیر دی دی وښیي دغه رنګي چې د دې حکم عام نه دی دا خطبې ته شامل نه دی ان شاء الله العزیز مخکې به خبره وکړو بحث به وکړو په هغې باندې دویم نمبر خبره د انصات او استماع ده د انصات معنا ده خاموش کېدل په هغې به زه وروسته ان شاء الله العزیز به وخت ضرورت په هغې باندې حوالې پیش کړم دا زما سره مفردات د امام راغب اصفهاني رحم الله صفحه 244 السکوت مختص بترک الکلام خاموش کېدل کلام پرې ښودل دغې ته ویل کېږي سکوت دا دویم نمبر زما سره سراح ده د استماع معنی کوي صفحه 316 باندې گوش داشتن استماع معنی ده غوږ ایښودل متوجه کېدل دغه رنګې دریم نمبر زما سره دا مسلم شریف دی د دې جلد نمبر 1 دی صفحه نمبر د دې 166 ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادت معمول بداو چې کله به په یو علاقې باندې حمله کول نو کان یستمع الاذان رسول الله صلی الله علیه وسلم به اذان ته غوږ ایښودو فان سمع اذانا امسکا رسول الله صلی الله علیه وسلم به اذان واورېدو نو بند بشو حمله به نه کول و الا اغاره که اذان आवाज به وانه اورېدو نو حمله به وکړه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم که از د استماع معنی اورېدل وی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږ ایښودل متوجه کېدل او بیا مخکې الفاظ فان سمع اذانا امسکا و الا اغاره دام په دې باندې دلالت کوي چې د استماع معنی اورېدل نه دي د استماع معنی متوجه کېدل دي د استماع معنی هغه توجه کول دي غوږ ایښودل دي چاهے انسان اوري او که نه اوري دغه رنګې دا صفحه نمبر 283 ده امام نووي رحم الله التر انصات معنی کوي فالاستماع الاصغاء خاموش کېدل چوپ کېدل والانصات السکوت د انصات معنی د سکوت چوپ کېدل خاموش کېدل دغه رنګې د انصات دا زما سره دویم کتاب دی د انصات په حوالې سره سره هم لیکي دغسې دا ټول کتابونه لیکي دی وایي د انصات معنی دا خاموش بودن
द इंसात माना दा सफ़ा नंबर 69 दा इंसात माना कई खामोश बूदन व गोश दाश्तन खामोश केदल और वग इखौदल दगनंगी तकरीबन गणी हवाले से पाकी बांधी पेश कवल शम खु मज़ीद तफसील तनज़मा द इंसात और इस्तिमा मानम मा बहवाल ज़िक्र लला च खामोश केदल चुप केदल मा यौ दलील पेश को जब इंशाअल्लाह जवाब दावा गवाड़म बेब मख की खबर को इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। भाई ने मेरे से पूछा कि आपका जवाब दावा क्या है। हमारा जवाब दावा ये है कि जिस वक़्त ख़तीब खुतबा देता हो उस वक़्त तहियतुल मस्जिद पढ़ने जायज़ हैं, तहियतुल मस्जिद पढ़े जा सकते हैं। तहियतुल मस्जिद के सिवा कोई नमाज उस वक़्त में नहीं पढ़ी जा सकती, किसी किस्म की कलाम उस वक़्त में नहीं की जा सकती, सिर्फ़ और सिर्फ तहियतुल मस्जिद ये मुस्तस्ना है। ये है हमारा जवाब दावा। बात पूरी हुई। बाकी आपने जो बातें की कि अहले हदीस ख़ारिजी हैं, अहले हदीस ये हैं वो हैं, ख़ारिजी आप हैं, तकफ़ीरी आप हैं। आपकी इन बातों का जवाब इंशाअल्लाह किसी और मौजू पर, आपने ख़ुद लिखा था कि मौजू से ख़ुरूज शिकस्त है और आप शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं पहली टर्म के अंदर कि आपने एक नई बात छेड़ दी। शायद आपके पास इस मौजू पर दलाइल नहीं है, इसलिए आपने नया मसला छेड़ दिया। तो ख़बरदार इसके बाद ये बात नहीं करनी। अगर आप ये बात करोगे तो आपकी ये शिकस्त तस्लीम होगी। नदीम साहब ये कान खोल के सुन लें ये मेरी बात। अब आइए असल मसले की तरफ। असल मसला आपने कहा था मौजू है कि खुतबे के दौरान 2 रकतें पढ़ना जो बाहर से आए। मौलवी साहब ने पूरी टर्म के अंदर एक भी बात ऐसी नहीं की जिसमें ये हो। मौलवी साहब ने आयत पढ़ी व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम। जी मुनाज़िर साहब मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाएं। आपने एक आयत पढ़ी व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। भाई खुतबे के अंदर खाली कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पर कुरान के वक़्त इस्तिमा और इंसात की बात है और आप जो मौजू है वो खुतबे का है। और अगर आप कहते हो फ़लाना कहता है कि ये आयत खुतबे के बारे में भी उतरी है, फ़लाने इमाम ने कहा यह आयत खुतबे के बारे में भी उतरी है, तो आप ये कहते हैं कि कुरान के ख़ास को, कुरान के आम को ख़बर वाहिद भी ख़ास नहीं कर सकती। ख़बर वाहिद नबी का फ़रमान भी ख़ास नहीं कर सकता। ठीक है। और जब आपको ख़ुद ज़रूरत पड़े तो आप उम्मतियों के अक़वाल के साथ उसमें जैसे मर्ज़ी तामीम पैदा कर लें, जैसे मर्ज़ी उसमें तवस्सो पैदा कर दें। भाई ये क़वानीन कोई बागीचा अतफ़ाल नहीं है कि जिसमें जैसी मर्ज़ी चाहो खेलते फिरो। इसलिए ये कुरान पढ़ने वाली आयत है कि कुरान पढ़ो तो इस्तिमा और इंसात इख्तियार करो। इसका खुतबे का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि इस्तिमा और इंसात पर झगड़ा नहीं है, इख्तिलाफ़ है 2 रकतें पढ़ने पर। 2 रकतें पढ़ना इस्तिमा और इंसात के ख़िलाफ़ नहीं है। आप ये पेश करो कि जिस वक़्त खुतबा हो रहा हो 2 रकतें तहियतुल मस्जिद अदा नहीं हो सकती। आपके पास दलील ही कोई नहीं है। आपको तो ये पेश, आपने कहा जी इस्तिमा करो इंसात करो। इस्तिमा और इंसात पे किसका इख्तिलाफ़ है? अगर आप कहते हो इस्तिमा और इंसात का माना है कि बिल्कुल ना पढ़ो तो ये माना आपका गलत है। आप ये बताइए, ठहरिए, आप ये बताइए कि जिस वक़्त इमाम क़िरात कर रहा होता है, नमाज हो रही है, पीछे से एक मसबूक आता है जो लेट हो गया। अब इमाम क़िरात कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, क़िरात हो रही है। अब जो मसबूक है वो आके अल्लाह अकबर कह के नमाज में दाखिल होगा कि वैसे ही दाखिल हो जाएगा? अगर अल्लाह अकबर कह के वह नमाज में दाखिल होगा और आपका जो इंसात का माना जो आप करते हो, इस्तिमा का माना जो आप करते हो, उसमें उसने अल्लाह अकबर कह के इस्तिमा और इंसात की मुखालफत कर दी कि ना कर दी? फ़जर की नमाज़ खड़ी होती है, इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं, मुफ्ती साहब का फतवा होगा कि सुतून के पीछे कोई भी बंदा फ़जर की 2 रकतें पढ़ सकता है। फ़जर की 2 रकतें पढ़ने से उसने इस्तिमा और इंसात की मुखालफत कर दी कि ना कर दी? और सुनो हदीस के अंदर क्या माना है इसका। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, बुखारी की रवायत है, कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्कुतु बैन तकबीर व बैन क़िराअह इस्काततन। फिर कहते हैं फ़क़ुल्तु लि अबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह इस्कातुका बैन तकबीर व बैन क़िराअति मा तक़ूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो सुकूत है, आपकी जो खामोशी है अल्लाह अकबर कहने के बाद और तकबीर क़िरात शुरू करने से पहले, इसमें आप क्या कहते हैं?
आपने फरमाया मैं कहता हूँ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। मालूम हुआ इसकात के अंदर, सकूत के अंदर क़िरात हो सकती है, उसके अंदर क़िरात हो सकती है। तभी आप भी कायल हैं कि मसबूक जब आए तो वो अल्लाह अकबर कह के उसमें शामिल हो। इसलिए वो दलील पेश कीजिए कि जिसमें ये हो कि जब इमाम खुतबा देता हो तो 2 तहियतुल मस्जिद रकात नहीं पढ़नी। आपने कोई दलील अपनी टर्म के अंदर पेश नहीं की। अब आइए हमसे हवाले सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी ये कौन सी किताब है जिसके बारे में असहुल कुतुबि बअद किताबिल्लाहि तआला तहत अदीम इस्समा, ये मकतबा रहमानिया देवबंदियों का मकतबा है। भाई ये आप ही की बात आपको सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से पेश नहीं कर रहा। आप ही के मकतबे वालों ने लिखा है कि ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे किताबुल्लाह के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी है। बुखारी के अंदर हदीस है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस लाए हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 232 और हदीस का नंबर है 1166। हदीस ये है कि समिअतु जाबिर इब्न अब्दिल्लाह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यख़्तुब, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना इस हाल में कि आप खुतबा दे रहे थे। आपने क्या फरमाया, इज़ा जाअ अहदुकुम, जिस वक़्त तुम में से कोई एक आए, वल इमाम यख़्तुब, और इमाम खुतबा दे रहा हो, औ क़द खरजा फ़लयुसल्लि रकअतैन, या इमाम निकल चुका हो वो 2 रकतें पढ़े। सुनिए, जिस वक़्त इमाम खुतबा देता हो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 2 रकतें पढ़े। सरी हदीस अल्लाह के नबी की। और तवज्जो से भाई नदीम साहब, तवज्जो से, क्योंकि हमारा मकसद इहक़ाक़ हक़ है। आपने जो आयत पढ़ी वो आयत किस पे उतरी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपसे ज़्यादा उस आयत की तफसीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अगर उस आयत का माना ये होता कि 2 रकतें तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी जा सकती तो कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें तहियतुल मस्जिद पढ़ने का हुक्म न देते। मालूम होता कि आपने 2 रकतें पढ़ने का जो हुक्म दिया कुरान की आयत के ख़िलाफ़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतों की तफसीर करने आए थे, कुरान के ख़िलाफ़ बातें करने नहीं आए। और आपने जितनी बातें पेश की हैं ये याद रखिए, हमारा झगड़ा, हमारा इख्तिलाफ इस मसले में है कि जब कोई ख़तीब खुतबा दे रहा है, बाहर से एक बंदा आया, उसने आकर 2 रकतें पढ़नी हैं या नहीं पढ़नी, इसमें इख्तिलाफ है। एक बंदा ख़तीब के आने से पहले मस्जिद में बैठा हुआ है, उसके लिए इत्तेफाक है कि वो 2 रकतें नहीं पढ़ेगा। एक बंदा ख़तीब के खुतबा देने के लिए आने से पहले मस्जिद पहुंच चुका है, उसके लिए लाजिम है कि वो ख़तीब का खुतबा सुने। इख्तिलाफ इसमें है कि ख़तीब पहले आया और मसबूक बाद में आया, वो उस वक़्त 2 रकतें पढ़ेगा कि बैठेगा। गोया कि हमारा झगड़ा ख़ास है। आप ख़ास दलील पेश करेंगे जिसमें ये लफ्ज़ हों कि इमाम खुतबा देता हो, कोई बाहर से आए तो वो 2 रकतें ना पढ़े। ये लफ्ज़ ये सुनिए, ये हाशिया इब्न आबिदीन है, इसके अंदर ये कहते हैं इदा क़ुबिल ख़ासु बिल आम, जिस वक़्त ख़ास का मुवाजना हो आम के साथ, युरादु बिही मा अदल ख़ास, तो उस वक़्त मुराद वो ली जाती है जो ख़ास के अलावा है। और आप ही का कायदा है, इसका नोट कीजिए, सफ़ा नंबर 100 है और जिल्द नंबर 4, और आपका कायदा है मा मिन आमिन इल्ला खुस्सा अन्हुल बाद, कोई भी ऐसा आम नहीं है मगर उससे किसी न किसी ख़ास की तख़सीस होती है। हम कहते हैं आप जितनी आम रिवायतें पेश करोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से तहियतुल मस्जिद 2 रकात की तख़सीस कर दी है। इसलिए ख़ास के मुकाबले में ख़ास दलील पेश कीजिएगा, आम दलील पेश करके अपना वक़्त ज़ाया मत कीजिएगा और ना किसी को यहाँ पर गलत फहमी में मुब्तला करने की कोशिश कीजिएगा। जी, ये फैज़ुल बारी हैं जिसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा इमामुल असर शेख मोहम्मद अनवर कश्मीरी रहमहुल्लाह। ये लिखते हैं इदा वरद ख़ासुन फ़ी मौदिइन व शमिलहुल आम अयदन व तआरद फ़िल हुक्मैन ला युअतद्दु बिहादल आम असलन व यकूनुल हुक्म हुक्मल ख़ास अला तरा अन्न रफ़अल यदैन इदा थबत फ़िल ईदैन ख़ासन अख़ज़हुल हनफ़िय्या व लम यत्रुकुहु बिल उमूमात। मोहतरम, ये कहते हैं कि जब एक मसला ख़ास अल्लाह के नबी या इस्लाम उसकी तख़सीस कर दे, उस मसले को उमूमात से रद्द नहीं किया जा सकता। मिसाल दे के समझाया कि जिस तरह के ईदैन का रफ़ुल यदैन हनफिया भी करते हैं, जबकि आम रफ़ुल यदैन नमाज़ों के अंदर हनफिया नहीं करते। वो कहते हैं जब ख़ास रफ़ुल यदैन हम करते हैं
तो ख़ास रफ़ुल यदैन से आम की तरफ नहीं जाया जा सकता। मालूम होता है कि जो चीज़ ख़ास साबित हो जाए उस चीज़ को उमूमी दलाइल से तर्क नहीं किया जा सकता। तो ये बात अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठाइए मेरे भाई। आपने वो रिवायत पेश करनी है, सही सरी एक रिवायत आपने वो पेश करनी है कि जिसमें ये लफ्ज़ हों। पूरा हो गया टाइम। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ज़रूरतुन अवल रज़म मा दावा पेश कली वा मा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ते वेलू ची जवाब दावा व मा तरा कई मौलवी साहब दार मुनाज़रे मैदान दे दरस मैदान न दे तासु ब कम अज़ कम दगुमरा खबर इज़्दा कड़ी वी ची जवाब दावा दार दावे जवाब वी ज़मा प दावा की दुआ अज्जाऊ क तासु अगी की उगो रही अवल नंबर जो ज़मा प दावा की वो चर खुतबे प दौरान की इंसात और इस्तेमा लाजिम और स्वलात और कलाम मकरूह दी पकार दावी ज़मार दुआड़ू अज्जाऊ जवाब मा तरा कड़ी वे दलती जवाब दावे से खुतबा जुमा के दौरान तहियतुल मस्जिद अदा की जा सकती है। अगर में उदग से मजहूल दावली कलीदा नप की हुक्म से न मज़ीद तफसीलात ज़रा मोली साहब ने तपोस को नंबर 1 तहियतुल मस्जिद पाम हालात किस्ता सुपनिस्सा हुक्म लरी नंबर 1। नंबर 2 द खुतबे प दौरान की तहियतुल मस्जिद स्ता सुपनिस्सा हुक्म लरी यो पाम हालात की यो द खुतबे प दौरान के नंबर 2 परज़ वाजिब सुनत ये सवर तवे आगे वजाहत वका जगह जी तरसो पूरी हुक्म शरई नहीं लगी दली तर अगो वक्त पूरी दा पता न लगेगी कि दलील बर कमी दर्जे रावड़ले शि। द्रेम नंबर के सोक द खुतबे दौरान के राशि और दावन की नुस्तासु बनिस दागा से हुक्म दे दगा दरे तनकीहात बस जवाब गाड़म इंशाअल्लाह हुल मख की तनकीहात बजकुम। द्वेम नंबर अवल दीव खबरू तराजम अवल नंबर खबर दीव दावक लामात हुई च खारिजानम तासु ये तकबीरियानम तासु ये मौलवी साहब दार मौजू न वतल न दी चूँकि कि माँ खबर वकला च सलोर मज़ाहिबू दागुई द मुक़ल्लिदीन हुक्म जुदा दे तासु जुदा दे सलोर मज़ाहिबू की सो कम पयोबल कुफर फतवे न लगे द उम्मत के अवल नहीं फितन तासु वही च तासु दगर खारिजियत पिजाश और रोकला कि लरी नशेत ले स्तासर वही उमल गेर दिल तनासु जलालुद्दीन से उस दी दुनिया न तले दे द टूर अवल ने बयान द गवावर द पाकिस्तान पे इदारों पे इर्तिदाद और कुफर बांधी रागवीड़ द अफगानिस्तान न रागलिदा द दाइश काज़ियुल क़ुज़्ज़ात स्तासुर अहले हदीस उलमा पर निस्बांदीम दाइश वाला खारिजियान दी। दोम नंबर के तदगी तम नज़े जब डेरी हवाले नदर कुमदा सिर्फ अलहक़ सरी उगोरा स्तार उस्ताद मोहतरम शेख साहब दे सफ़ा नंबर जिल 1 सफ़ा नंबर 637 दे वही लक हुकूमतुन इस्लामी बाज़ी हुकूमतुन तो इस्लामी हुकूमतुन वाई पाकिस्तान तम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाई ईरान तम इस्लामी जमहूरिया ईरान वाई सिर्फ नमूना दी बादशाह ने कुफ़ार और जंदीक़ान दी यानी सुमरा असर खलक दी दगरंगी हवाली गणी पेश कवले समागी तनज़मा चे दगा मुसलमानानु तकफीर तासु कोई हुक्मरानानु तकफीर तासु की कम मुसलमानान दिया गई तम काफिर हुई चलो जाने दो दाजल दे तफसील तनज़ब द्वेम नंबर दे था दे वही हुई तासु नहीं मसला हो चल मसला में नदर चल हजरत सिर्फ तासु हैसियत में वाज़ेह हो। द्वेम नंबर दे वही द खुतबे प दौरान की सिर्फ कुरान मजीद नवी अल्लाह बंदा मारा गिर पर दरे तफासिर सलोरम तफसीर मस्तासु न उचत को क़ाल फ़िस्सलाती वल खुतबती यौमल जुमुआती माद इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह कवल पेश को आगे पबारे की खो पता न लगी पागे बांध दी उस तरह की पर्टिकुलर माँ खुर किरत खबर न दकड़ी द जुमीद उमूम दरे तफासिर सलोरम द गैर मुकल्लिद तफसीर में उछत सलोरम नंबर दे वही कुरान खबर वाहिस्तासु उसूल दारी मात वही कि खबर वाहिदम द पसरम द कुरान मजीद दाम हुक्म तखसीस न शिके दे नुमार तखसीस खबर दिलती कड़ी दा मादलती खबर न दे कड़ी मोली साहब जोम द आयत नजूल द मुंस प बारे की शवे दे द खुतबे द जुमे प बाजे की बारे की शवे दे द यो आयत द नजूल मतलब द गदे मुफस्सिरीन लगिया दी और तर तखसीस और तामीम प खबर की तलाई। पिंजम नंबर दे वही इंसात और इस्तेमा बांधी झगड़ा न दा झगड़ा पस बांधी दा झगड़ा पर इंसात बांधी दा पर इस्तेमा बांधी दा अगर तमा प दावो की दर लजमा प दावो की द्वाड़ अज्जा इंशाल्लाह सब द्वाड़ साबित हो मखी वजू। शपगम नंबर दे वही इमाम मान तपोस को इमाम किरात गई वो मजबूक राजी व अल्लाह अकबर वही पदी वक्त की खुमनी से बुरा नज़लत फ़िस्सलाती मुक्तदी तदगा हुक्म दे खुतबा शोरोदा अल तयकस नास्ते पदी दौरान की अगत हुक्म दे द खामोश के दो द वग खौदो द मुतवज्जह के दो दे वक्त के लगा मुंस दाखिल शवे न दे अल्लाह अकबर वही पदी सर मुंस दाखिल शो द हुक्म और मुतवज्जह शो यौ खबर मोली से। द्वेम नंबर दे ज़माना तपोस के सहर पमुंस के फुला फुला द मौजू न खारिज बाहर लाड़ो और दिस सवालात पदी सरस्ता मुद्दा न साबिती की ने दागी सर से ताल्लुक तरह बे बुखारी शरीफ रवागस्तो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह उस्ताद उपलन के नुदारी द
مکتبو والا خبر ده ستا اصول صرف قرآن دی یا حدیث دی یا خو قرآن کې وخایه چې بخاری اصح الکتب دی یا حدیثو کې وخایه د امتی طرف ته مزه ځکه چې دغه ستاسو بنس تقلید دی او شرک کوي یعنی نن تا د یو مکتبې والا د یو تجارتي سړي تقلید پاغي کې کو باغي کې ور رواج شي په خپل اصول مطابق مشرک وګرځي دی که قرآن کې خو علن کې دغه بخاری تا کولاو کړه ویلان در ابن الهمام رحم الله قول موجود دی چې دا سین زوری دا لا يجوز فيه التقلید دغه بخاری کې دن له کولاو کو دن مکتبو والا خبرو په روان دي دا توفیق درته نه ملاوي چې بخاری کولاو کوي نه هم نمبر دی وای حدیث پیش کو او راغې نه وروسته هغه حدیث تفصیل ته زه راځم خو راغې نه وروسته ما ته دا آیات په چا باندې نازل شوی دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او بیا د هغې دپاره روایت راواغستو نو که دی د دغه حدیث په باره کې ښودی شي چې دا د دې آیت په تفسیر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یا د صحابي قول ښودی شي یا د تابعي ښودی شي یا د تبع تابعي ښودی شي بسم الله که میدان کې پیش کړه که نه شي ښودی نو دا د خپل طرف نه تفسیر بې رایې مه کوه مولوي صاحب د دغه د قرآن مجید د دې آیات نزول د دې نه وروسته شوی انشاءالله زه هغه وروسته تفصیل پیش کوم د قرآن مجید د دې آیات د دې حکم په نازلېدو سره د دې نه مخکې څومره احکامات په دې باره کې راغلي وو ټول منسوخ ګرځېدل وروسته به حواله پیش کوم انشاءالله په اخره کې بیا دی ما ته وایي ته به خاص دلیل نه پیش کوې دا اول نمبر واخله ستا فتاوه حصاریه د دې صفحه نمبر 12 دی وایي نیل الاوتار د قاضي شوکاني صاحب چې تاسو مشر دی هغه حواله پیش کوي جل نمبر 2 صفحہ 216 میں ہے بناء العام علی الخاص واجب کما تقرر فی الاصول اور جل 2 صفحہ نمبر 193 میں ہے حمل المطلق علی المقید واجب علی ما هو الحق فی الاصول یعنی علم اصول میں یہ قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ عام کے بنا خاص پر اور مطلق کے مقید پر رکھنی واجب ہے لغپل کتابوں نے وګوره مولوی صاحب انشاءاللہ ورکی کتاب ورک دویم نمبر دی چې کوم حدیث پیش کو مولوی صاحب د ټولو نه اول قرآن ته لاس ور نه وړو کاش که مولوی صاحب ویلې وی چې زما په سر باندې دلته قرآن لاس نه زما په سر لاس نه ایږدي دویم نمبر کوم روایت مولوی صاحب پیش کو د دغه روایت مولوی صاحب دا شعبه تفرد دی او د عمرو ابن دینار نه په دغه مذکوره الفاظ سره روایت نقل کولو کې د توهم شوی دی په اصل کې دا د حضرت سلیک رضی الله عنه واقع ده چې په غلطۍ سره ورنه هغوی قولي حدیث جوړ کړی دی او دا خبره زه نه کومه دا امام دارقطنی رحم الله په خپل کتاب کم چې په بخاری مسلم لیکلی دی کم روایات دغه متکلم فیه دي هغه روایات د دې صفحه نمبر 386 کې عن جابر اذا جاء احدكم والامام يخطب ام دغه روایت نقل کوي ام دا د بخاری په هغه روایاتو کې دی چې امام بخاری رحم الله مسلم په هغه روایاتو کې دی چې دا متکلم فیه دی دلته خطا شوی دی دغه نه ورکه والله دریم نمبر دا روایت مولوی صاحب د قرآن مجید آیات ما پیش کو ردی باره کې نس قطعی میں پیش کو ستا د استدلال پیش نظر دا راغی معارض دی دویم نمبر د خلفای راشدین او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین عمل ز پیش کوما چې هغوی دا د دې نه خلق منع کول دی مکروه ګڼو دی بد ګڼو د دې نه خلق منع کول الان کې خلفای راشدین زم د تا نه تپوس کوم قرآن نبی علیه الصلاۃ والسلام نه خلفای راشدین او صحابه کرامو زده کړی دی احادیث د نبی علیه السلام نه نقل کوونکي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دي چې کله هغوی د یو آیات مطلب څنګه هغوی راته بیانوي د روافظو غوندې کار به نه کوو چې د صحابو فهم شاته واترتو د خلفای راشدینو فهم شاته وغورځو انشاءالله العزیز هغه وروسته پیش کوم چې خلفای راشدین هم د خطبې په دوران کې منځ صلات کلام دا مکروه ګڼو څنګه چې زما دا ود انشاءالله وروسته پرې راځم پنځم نمبر که چېرته د تطبیق طریقه اختیار کړلی شي نو دا به وویلی شي چې والامام یخطبون مراد یرید الامام ان یخطبه چې کله او که چېرته د ترجیح طریقې اختیار کړلی شي نو بیا روایت د نهي په څو وجهو سره راجح دي انشاءالله زه به هغه وروسته پیش کوم نمبر 1 محرم او مبیح کې د تعرض په وخت کې محرم لره ترجیح ورکولی شي دویم روایت د نهي مؤید بالقرآن دي دریم نمبر روایت د نهي مؤید بالاصول الکلیه دي څلورم نمبر روایت د نهي مؤید بتعامل الصحابه والتابعین دي پنځم نمبر په دې باندې عمل کولو کې احتیاط هم زیات دی شپږم نمبر پاغي باندې وروسته انشاءالله العزیز زه تفصیل ته راځم خو ما د مولوي صاحب نه تپوس کړی و په خپله دعوه باندې مولوي صاحب تر اوسه پورې نه خو جواب دعوه ما ته راکړې ده نه پاغي حکم شرعي لګولی دی ما په خپله دعوه باندې اول نمبر دلیل د قرآن نه پیش کړی و زه دویم نمبر دلیل د بخاري شریف نه پیش کوم کوم چې مولوي صاحب ویل د اصح الکتب دی جلد نمبر 1 صفحه 192 رحمانی چاپ دی صفحه نمبر 192
रिवायत दे हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़्तसिलु रजुलुन यौमल जुमुअति व यतहहरु मस्तताअ मिन तूरिन व यद्दहिनु मिन दूनिही औ यमुस्सु मिन तीबि बैतिही थुम्मा यख़रुजु दे गुसल वकी कपड़े बराबर की ब्या रऊजी फ़ला युफ़र्रिक़ु बैन इस्नैनि दो कसानों पे मेंस की जुदा वाले न रावली थुम्मा युसल्ली बिया मुंस के मा कुतिब लहू अगर चरित्र पार मुकर्रर शवे थुम्मा यंसितु बेदे खामोशी इदा तकल्लमल इमामु ची इमाम खुतबा शुरू की इल्ला गुफिर लहू मा बैनहु व बैनल जुमुअतिल उखरा द द्रेम नंबर दलील से पखपल दावो बांधे पेश को वर्क द द्रेम नंबर सही इब्न खुज़ैमा नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखो मैं फिर आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आप मौजू से खरूज कर रहे हैं। आपने 3 बाब में मौजू से खरूज किया। नंबर 1, आपने कहा कि तहियतुल मस्जिद का क्या हुक्म है। तहियतुल मस्जिद पर गुफ्तगू नहीं है। तहियतुल मस्जिद खुतबे के दौरान, तहियतुल मस्जिद खुतबे के दौरान उस चुप रहें बोलना नहीं। तहियतुल मस्जिद खुतबे के दौरान वो मौजू है। मौलवी साहब आपको इतना भी नहीं पता, आगे मुनाजरा करने के लिए कम अज़ कम इतना तो समझ लेते किसी से कि मौजू क्या है। वाह, हुए कैसे फ़कीहान हरम पैदा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मज़ाहब अरबा में से किसी ने किसी की तकफ़ीर नहीं की, ये भी अलग मौजू है। मौलवी साहब आपको बड़ा शौक़ है ना इस मौजू पे बात करने का, इस पर शिकस्त लिखो, अभी आ जाओ उस पर लिखो शिकस्त इस पे तहियतुल मस्जिद पे, और अभी आ जाओ उस पर, आपको बताता हूँ मैं। और मुझे पता है न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और फिर आगे कहते हैं कि शेख जलाल का नाम लेकर कहा उन्होंने तकफ़ीर की। मौलवी साहब तकफ़ीर के 2 क्लिप आपके मेरी जेब में अभी भी पड़े हुए हैं। जमात इस्लामी को आपने यहूदियों का एजेंट कहा, आपने इमरान खान की हुकूमत पर धरना दिया, क्या ये खरूज नहीं है? तुमने सब ने खरूज किया इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़। इस्लामाबाद देखें, जो इस्लामाबाद में तुमने धरना दिया वो खरूज नहीं। और अगली बात मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहते हो कि शेख जलाल ने ऐसे कहा ऐसे कहा, आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का जो कानून है वो ऐन इस्लामी है, बस इतना जवाब दे दें, ठीक है। आगे इन्होंने कहा जी कि तफसीर मैंने फ़लाँ की पेश की, फ़लाँ की पेश की। मौलवी साहब आज तक तो आप कहते रहे हैं कि हमारी दलील 4 हैं, कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, ये आपके फ़ुक़हा की। और मुक़ल्लिद की दलील सिर्फ अम्मल मुक़ल्लिद फ़मुस्तनदुहु क़ौल मुज्तहिदिही, मुक़ल्लिद की दलील उसके इमाम का कौल होता है। आपने तो कहीं भी अपने इमाम अबू हनीफा से इसकी तफसीर पेश नहीं की। लगता है आप भी मुजाहिद के मुक़ल्लिद हो गए हैं, छोड़ दिया इमाम साहब को आपने। बड़े अफसोस की बात है यार, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे हैं। बड़ा एतमाद था, आज वो इमाम साहब को छोड़ गए, सरे मैदान इमाम साहब को छोड़ गए हैं। और फिर कहते हैं इस्तिमा और इंसात पर झगड़ा नहीं है। मेरे भाई मैंने तो आपको उसका मतलब समझाया, अब आपको नहीं समझ आती तो आप मेरे से पहली क्लास में दाखिला लो, मैं फिर आपको समझा, बल्कि आप पहली के भी काबिल नहीं हो, ये दादी में बिठाऊंगा आपको। फिर आपने कहा अल्लाहु अकबर वाला जो मामला है वो बंदा नमाज में अभी दाखिल ही नहीं हुआ, और वो आयत नमाज में दाखिल होने के बारे में है। तवज्जो से, कुरान तो आम है, इज़ा कुरी अल कुरान, जब भी कुरान पढ़ा जाए हैं, कुरान के आम को अब तुम कैसे ख़ास करोगे नमाज के साथ? तुम तो ख़बर वाहिद की तखसीस के कायल नहीं हो मौलाना, तो वहाँ पर मौलवियों के अकवाल से कैसे उसको ख़ास करोगे? और इसी तरह इन्होंने कहा बिनाउल ख़ासी अलल आम, वो कहते हैं कि हमारी बात उन्होंने कर दी लेकिन उनको पता ही नहीं बेचारों को मैंने बात क्या की है। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, यही बात मैं समझा रहा हूँ कि जब किसी आम से किसी चीज़ की तखसीस हो जाए तो उमूमी दलाइल से उसके ख़िलाफ़ रिवायत नहीं पेश की जाती। एक मिसाल दे के समझाता हूँ क्योंकि आपको जल्दी बात समझ नहीं आती। हदीस के अंदर, कुरान के अंदर आता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम है, ठीक है। अब हदीस कहती है कि उहिल्लत लना मैततान, 2 मुर्दार हलाल है। कौन से? मछली, मछली की इस्तिस्ना हदीस ने कर दी। कुरान कहता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार हराम, लेकिन हदीस से तखसीस कर दी, मछली ख़ास है। अब कोई नदीम साहब जैसा आ जाए और वो कहे कि जी मछली मुर्दार होती है, कुरान कहता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तो आप उसको कहेंगे कि उस आम से कुरान ने मछली, हदीस ने मछली की तखसीस कर दी है। इसी तरह हम कहते हैं तहियतुल मस्जिद, खुतबे के दौरान हदीस ने उसकी यहाँ पर तखसीस कर दी है, अगर तुम आयत का माना ये लेते हो तो। फिर इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने कहा कि रावी को यहाँ पर, तवज्जो से भाई, इन्होंने कहा कि रावी को यहाँ पर गलती लगी है। बुखारी की रवायत पर इन्होंने
जरा की कहा कि उसको गलती लगी है, उसने इसको कौली हदीस बना दिया जो कि फ़ेल था। भाई इस पर दलील पेश करो। दावों से बात साबित नहीं होती। छोटा मुंह बड़ी बात। बुखारी पर यह कह देना कि बुखारी के रावी को गलती लगी है, ये साबित करो। शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैं युहव्विनु अमरहुमा फहुवा मुब्तदिउन मुत्तबिउन गैर सबीलिल मुमिनीन हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। जो बुखारी और मुस्लिम के मामले की तौहीन करता है वो बिदती है, वो बिदती है और मुसलमानों के रस्से से हट के चलने वाला है। इसलिए बुखारी की रवायत पर अगर जरा की तो या तो दलील पेश करो या तसरीह। बाकी रहा अल इल्ज़ामात व ततब्बो, ये जो आपने पेश की है किताब, इस पर जो इमाम दारक़ुतनी रहमहुल्लाह ने जो लिखा है, इसका जवाब इब्ने हजर ने हदीस सारी के अंदर तफसीली दिया है। शायद आपका उससे वास्ता ना हो। आप देख रहे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें बुखारी पर कोई इल्ज़ाम आता हो। मेरी रिवायत अपनी जगह पर कायम है। और कहते हैं कि जी कहते हैं कि सहाबाई कराम तहियतुल मस्जिद से मना किया करते थे। सहाबाई कराम तहियतुल मस्जिद से मना करते थे। एक रिवायत पेश करो कि सहाबाई कराम ने कहा हो खुतबे के दौरान जो बाहर से आए वो तहियतुल मस्जिद ना पढ़े। एक रिवायत सही पेश करनी है सनद के साथ। और इन्होंने कहा कि राफ़िज़ियों का काम है, इन्होंने कहा राफ़िज़ियों का काम है सहाबा के फ़हम को पीछे छोड़ देना। अभी मैं सहाबी का फ़हम पेश करने लगा हूँ, देखता हूँ राफ़िज़ी कौन है। ये मेरे हाथ के अंदर सुनन नसाई है, हदीस है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की जी, सफ़ा नंबर 351। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्ना रजुलन दखल अल मस्जिद यौम जुमा, एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ जुमे के दिन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल सल्लि रकातैन, तुम 2 रकतें पढ़ो। सुम्मा जा अल जुमात थानिया, फिर वो बंदा दूसरे जुमे आया। वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुब, आप खुतबा दे रहे थे। फ़क़ाल सल्लि रकातैन, 2 रकतें पढ़ो। सुम्मा जा अल जुमात थालिसा, फिर वो तीसरे जुमे आया। फ़क़ाल सल्लि रकातैन, आपने फरमाया 2 रकतें पढ़ो। सुम्मा क़ाल तसद्दक़ू फ़तसद्दक़ू फ़अताहु थौबैन, आपने फरमाया सदका करो, उसको लोगों ने 2 कपड़े दिए। और सुम्मा क़ाल तसद्दक़ू फ़तरह अहद थौबैहि, लोगों ने सदका किया, उसने कपड़ों में से एक कपड़े को छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ये उमूमी हुक्म फरमाया कि जिस वक़्त तुम में से कोई एक मस्जिद में दाखिल हो तो वो 2 रकतें पढ़े बगैर ना बैठे। ये सुनन नसाई की रवायत है जो मैंने आपके सामने पेश की, गोया कि सहाबी का फ़हम है। अबू सईद खुदरी वाली रवायत पेश करें जी। रवायत नंबर 3 बुखारी से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम से, ख़तब फ़क़ाल इज़ा जा अहदुकुम यौमल जुमा, जिस वक़्त, मौलाना देखें नदीम साहब, मैं जो भी रिवायत पेश कर रहा हूँ मैं उसके अंदर लफ्ज़ पेश कर रहा हूँ। जिस वक़्त इमाम खुतबा दे रहा हो और कोई आए, आपने ऐसी रिवायत पेश करनी है कि जिसमें ये लफ्ज़ों कोई बाहर से आए, इमाम खुतबा दे रहा हो तो वो 2 रकतें ना पढ़े। मैं वो रिवायत पेश कर रहा हूँ कि इमाम खुतबा दे रहा हो, कोई बाहर से आए, वो 2 रकतें पढ़े। आपने वो पेश करनी है इमाम खुतबा दे रहा हो, कोई बाहर से आए, वो 2 रकतें ना पढ़े। और अगर आप पेश नहीं कर सकेंगे ये आपकी शिकस्त है। वक़द खरज अल इमाम फलयुसल्ली रकातैन, इमाम निकल भी चुका हो, वो 2 रकतें पढ़े। और इसी तरह चौथी हदीस, जा सुलैकिनिल गतफ़ानी, सुलैक अल गतफ़ानी आए यौमुल जुमा, जुमे के दिन, व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदुन अलल मिंबर फ़क़अद सुलैक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। ये किस वक़्त बैठे हुए थे, ये कोई वजाहत नहीं है। ये खुतबे से पहले बैठे थे या एक खुतबा दे के जो 2 खुतबों के दरमियान जुलूस होता है उसमें बैठे थे, कोई वजाहत नहीं है इसमें। फ़क़अद सुलैक क़ब्ल अन युसल्लिया, सुलैक बैठ गए जुमा नमाज़ पढ़ने से पहले। फ़क़ाल लहु नबी अरकात रकातैन, तूने 2 रकतें पढ़ी हैं? क़ाल ला। क़ाल कुम फ़रक़अहुमा, खड़े हो जाओ और इन 2 रकतों को पढ़ो। और सुलैक गतफ़ानी को इल्म नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखा। और ये पाँचवीं दलील अबू सईद खुदरी रज़ी, मरवान वाली तवज्जो से, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु दाखल यौमुल जुमाअती व मरवान यख्तुब, सहाबी का फ़हम को छोड़ना राफ़िज़ियों का काम है। अबू सईद खुदरी दाखिल हुए जुमे के दिन, मरवान खुतबा दे रहा था। फ़क़ाम युसल्ली, सहाबी रसूल जिसके फ़हम को छोड़ना राफ़िज़ियत है वो नमाज पढ़ने लग पड़े। फ़जा अल हरस, छिल्लड़ आ गए, पुलिस वाले आ गए। लियुजलिसूहु, कि वो उसको बिठाएं। फ़अबा, अबू सईद खुदरी ने इनकार कर दिया। हत्ता सल्ला, यहाँ तक कि उन्होंने नमाज़ पढ़ ली। फलम्मन सरफ़, जब वो फिर गए, अतईनाहु, जुमे से जब फारूग हुए तो ताबईन कहते हैं हम अबू सईद खुदरी के पास आए। फ़कुलना रहिमकल्लाह, हमने कहा अबू सईद आप पर अल्लाह रहम करे। इन कादू लयक़अू, वो फ़ौजी तो करीब थे कि तुम्हें पकड़ के मारते कि आप मरवान के खुतबे के दौरान 2 रकतें पढ़ रहे हैं। फ़क़ाल मा कुन्तु लिअत्रुकहुमा बअद शैइन रअयतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैंने जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल के सामने करते हुए देखा, आपसे मैंने जिस चीज़ को लिया, मैं उसको किसी की वजह से हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। कौन सी चीज़? तहियतुल मस्जिद खुतबे के दौरान मैंने इसको अल्लाह के रसूल से लिया। मा कुन्तु लिअत्रुकहुमा बाद शैइन रअयतुहु मिन रसूलिल्लाह, जो चीज़ मैंने अल्लाह के रसूल से ली है मैं किसी की वजह से उसको नहीं छोड़ता। सुम्मा ज़करा, फिर अबू सईद खुदरी ने एक और दलील जिक्र की। अन्ना रजुलन जाअ यौमल जुमाअति फ़ी हयअतिन बज़्ज़तिन, एक आदमी जुमे के दिन आया, उसकी हालत कमज़ोर थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे जुमे के दिन। फ़अमरहु फ़सल्ला रकातैन वन नबी यख्तुब, आपने उसको हुक्म दिया वो 2 रकअतें पढ़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। तिरमिज़ी